Is sir here? Yes, yes. Okay. So, a very good evening to everyone present here. Our today's webinar is designed to provide everyone here with a clear roadmap for success, offering insights and expert guidance to help you navigate the challenges of NEET 2025 exam, MDS exam. So, this session is basically designed in a Q&A format where we have received a couple of questions on the link that we have provided on our page on Instagram. A lot of you have placed a lot of questions for our today's speaker, that's Dr. Nilesh. He secured the NEET MDS rank 214 in 2020, which is a very, very huge feat and something that's very impossible for a lot of us. So, we have his expert guidance with us today, and we'll be starting our session to help you equip with all the tools and confidence that is needed to achieve this success. So I would request our speaker, Dr. Nirmal, to introduce himself, tell a little about himself, his journey, and then we'll start with the Q&A session as soon as possible. Dr. Nirmal, sir, are you here? Dr. Nilesh. Hello, hello everyone. Good evening, Am I sir. audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Sir. Okay, so today we will discuss strategies for NEET MDS 2025. Before that, let me introduce myself. My name is Dr. Nilesh. Just a minute. Can you see this slide? We can see the first slide only. Okay. It is changing? Yes, now it is changing. Okay. So my name is Dr. Nilesh. I have completed my MDS in prosthodontics from Government Dental College, Ahmedabad, and recently I am class 2 dental surgeon at CHC Bhachau. In today's seminar, we will discuss both NEET MDS 2025 and upcoming NEET MDS. So students who are in third year or final year internship, we will briefly discuss for them also. So first and foremost question is, should you prepare by yourself or should you join a coaching institute? Now it totally depends on the preparation. If you are comfortable preparing by yourself, then you can study by yourself. But if you think about giving the mock test, if you think about preparing with people, if you are competitive in nature, then you should join a coaching institute. Now, which are different coaching institute? I have made this table for simplifying. You can take this screenshot of this, all the most famous coaching institute of India in NEET MDS particularly. So I will not go in deep for the coaching institute. Today we will mainly focus on how to study by yourself only. So these are the recommendation for coaching institute. Now, frankly, if you are going for coaching institute, there is no best coaching institute for you. You have to choose the best, right? So I would suggest take the demo lectures of all the coaching institute and you will get the idea which is working for you, right? So there is no clear-cut answer for coaching institutes. You can choose any coaching institute which is comfortable for you only. So suppose I am opting for self-study. If I am planning to study by myself for today only, and my exam will be like on March, any day, suppose our exam is on 16th March, and I start to prepare from today, then what will be my approach for the exam? I will first make the timetable. So we are here and we have almost 50 days for the exam, right? And suppose I don't have
started the preparation till now, and from tomorrow I will be starting the preparation. So first of all, I will need to make a schedule for the preparation. So from tomorrow I will start general medicine, general anatomy, then physiology, biochemistry likewise. See, we have 50 days, and in 50 days we have to cover almost 20 subjects. So we have 2 days for one subject, and for 10 days we will revise whatever we have learned, and we will do mock test and previous year question papers. So I will start from tomorrow at 8 a.m. I will start reading general anatomy. So my approach will be from 8 to 1, and from 3 to 8 I will study for myself. Now what will be the approach? What should be the book you should read, or which type of study material you should choose? Frankly, I will choose Dental Pulse. You can choose any book. It's up to you. If you are comfortable with Vadwan, you can choose there. Gauri Shankar. There are different books in the market. Suppose most of, I think, will be studying from Dental Pulse. So our approach in the Dental Pulse is generally we will do the questions, then the explanations, and finally synopsis, right? But we have very less time for the exam. I will do another thing. I will choose to read synopsis first. So starting tomorrow from 8 to 1, I will read synopsis of general anatomy. I can read the synopsis of 15 to 20 pages in 2 hours, right? I will just read the synopsis. I don't have to remember anything. I don't have to memorize anything. I will just read the synopsis. So can I read the 20 pages in 2 hours? Of course I can, right? In those 20 pages, there will be 20% facts I will be already knowing. I will highlight only those facts which are a little harder for me. So in 2 hours, I will read synopsis one time, right? And then I will take a break of 5 minutes, and I will again read the synopsis, just the synopsis. In this next 1 hour, I will finish the synopsis again. So in 3 hours, I have completed the synopsis 3 times. I have just read. I am not trying to memorize anything, right? I am just reading, because our exam is MCQ type of exam. It is not a theory type of exam where I have to recall anything. I have to just understand. I have to just know the fact, right? So in this way, in second revision of the synopsis, I will be remembering 50%. I will be I will have knowledge of 50% of the facts, right? In third revision, I will again take a 5 minutes break, and I will read again the synopsis. So in these 5 hours, year to year, in these 5 hours, I would have read the synopsis 3 times, right? So in 5 hours, I have completed the synopsis. Then I will take the break. I will have the lunch, have the nap of 1 hour, and then I will again start my preparation of general anatomy. Now this time I will read the explanations. All the subjects, every subject have at least 15 chapters in the subject, right? 10 to 15 chapters are there in all the subjects. So I will choose 3 chapters, and I will read the explanation of those chapters. So from first chapter, I will read the explanation, then second, just explanation. We are not solving the questions, right? And because I have read the synopsis, the explanation will be easier for me to understand. And in Pulse, almost 30% of the questions do not have explanations. So can we say that explanation will be completed in 3 hours? 3 chapter explanations will be completed in 3 hours, right? All the chapters have, one chapter have at least 50 to 60 questions. So I can complete 180 questions in 3 hours, right? I can complete.
So explanations can be done in 3 hours. In next hour, I will again revise the explanation. And in last 1 hour, I will try to solve the questions. Because I have read the synopsis, because I have read the explanations, now questions will be very easier for me. So this will be my approach for starting the preparation. I don't want to remember anything. I want to just understand and know the things, right? So for first day, I have completed 3 chapters, synopsis and explanations of all 3 chapters. Now on Tuesday, when I'm starting my preparation, first and foremost thing will be revision. Because when I have started the my preparation, after 1 day, 50% of whatever I have learned will be lost. This is Ebbinghaus forgetting curve, which says that whatever you have learned, it will be forgotten approximately 50% in 1 day. So you will forget 50% in 1 day. So on second day, on Tuesday, first thing I will do is revising whatever I have learned. So second day, first thing, I will read the synopsis, whichever things I had marked, I will read the explanation, important things, and then I will start my preparation. So in this way, I will revise on first day, 5th day, 12th day, 25th day, and 45th day. Then only I will have 100% of retention of whatever I have learned. So I have completed, suppose I have completed my anatomy here. And on second day, when I am starting the physiology, I will revise anatomy. On Friday, when I start biochemistry, I will revise anatomy and physiology. So in this way, you are revising along with the preparation, because you don't have to make another time slot for the revision, right? So this should be the approach. So revision is the key. As Master Bruce Lee says that I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. I have seen many students who read 10 types of books once and they don't know anything from that books. And I have seen many students who just read Dental Pulse 10 times and they have cleared the exams in very good rank. So choose one book, stick to it, stick to your basics, just keep revising whatever you have learned, right? Second thing is Pareto principle. Pareto principle says that 20% your effort will generate 80% of your result. That means whatever you are learning, 20% of those concepts will produce 80% of the result. So you should focus on high yielding topics, right? If you see oral pathology or oral medicine, there are thousands of lesions, but not all the lesions are important. You have to focus on the most important things, right? Then your question will be like, how to know which are the important things? How to know which are the most important high yield topics? For that, we have to solve previous year question papers. You have to solve last 10 years or at least 5 years of previous year question papers, because 60 to 70% of all the questions asked in exams are directly or indirectly from previous year papers. And those papers will give you the idea of most important high yield topics. So solve those question papers. On every Sunday, you can give 3 hours to 4 hours to solve those previous year question papers, because see, everyone has solved those questions, right? Everyone knows the answer of those questions. And if this question will be repeated in the exam, all the students will give the right answer of those questions. So you cannot afford to leave these previous year question papers, because they will contain 60 to 70% of weightage in the exam. And last is mock test. Now that you have covered your syllabus 60 to 70%, I am not asking you to cover 100% of syllabus. If you properly complete 60 to 70% of your syllabus, if you focus mainly on high yielding topic,
it's okay. It is enough for you to crack the exam. Now you have to focus on mock test, because as you know that before going for final match, you have to practice, right? So mock test will give you the idea of exam like situation. It will make your brain habituated for the exam, and it improves the time management skill also. So your brain will be able to function properly in the exam, because it will be just another exam. If you have given 10 to 15 mock tests before the final exam, it will be just another exam for your brain. It will be not new thing, and your anxiety will be reduced in this manner. Next is most important, where many students are struggling with, is anxiety management. How to manage your anxiety during exam preparation. Will I get the desired result? Will I get the seat? What will happen if I don't get the government seat? These kind of questions are normal. Everyone goes through these, right? So don't worry if you are having a moderate amount of stress, and it is actually beneficial for having some stress. As Yerkes Dodson curve says, this is the curve. If you have low stress, your performance will be low, because you will not have motivation for work. If your stress increases, this is the healthy pressure, healthy stress, and this is the optimal stress. In this stress, your focus will be maximum. You will, because your sympathetic nervous system is active now, your focus will be maximum. You will be able to complete the task properly, right? So if you are facing some kind of stress, it is okay. It is actually beneficial for you. So be thankful if you are having some stress. Many students don't get stress because they are totally lazy and unmotivated for preparation of the exam, right? If you are feeling so much stress that you cannot even prepare for the exam, then you can do some exercise and some breathing exercise. You can focus on your breath for some time. Breathe in, breathe out, focus on the breath, and it will drastically reduce your stress within 1 minute. Second thing is moving your body. Physical exercise is inversely proportional, directly proportional to reduction in the stress, or inversely proportional to the stress, right? So if you give stress to your body, your brain will have lesser stress. So give some stress to your body. Do some exercise, do jogging, walking, do some dance, do anything which moves your body. In this way, your body will produce stress releasing hormone, which reduce the anxiety and stress. These are some steps for reducing the anxiety. These are short temporary steps. But if you constantly feel anxious, stressed out, then this is for you. Now, you may think I'm spiritual or a philosophical guy, but this is the best quote this was the best quote during my preparation. That is karmanyavadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karmafal heturbu mate sangosva karmani. Now, I am not being religious or spiritual, but you think like this. You are not preparing for yourself. You are not preparing for your parents or society. You are not preparing for anyone. You are preparing for the exam because it is your duty. That's it. You are preparing because it is given to you, right? So do your best. Try to work as hard as possible, so that when you sleep, you can say that, okay, I have done enough by myself. Now, whatever is the result, I don't care, right? This should be your thought when you go to sleep. And this by Kobe Bryant. First, read the quote by Kobe Bryant, and you will see, you will understand that you don't have to just work. You have to work harder than anyone else. If you know that you are working harder than everyone around you, it will be automatically stress reliever for you, because now you know that you have worked enough hard, and there is nothing you can do much about this. So these are some steps for
preparing yourself for the exam. Now, what to do on the day of exam? So if you have any doubt till now, any doubts? Jablin, if anyone have doubts, you can ask them. Yes, if anybody has any doubt, they can ask sir right now, or just type the message in the chat box. Because all the questions that we received on the link, sir has covered everything here. So I'm hoping nobody has any further doubts. But if they have, they can ask sir right now. Sir, Yes. sir, I wanted to ask, like, what should be the pattern for revision? Like you said, first revision, second, third, fourth, ऐसे करके, right? Yes. So अगर first day किया, फिर third, फिर fifth, फिर eighth, right? But प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर फिफ्थ डे को हम रिवीजन को सब्जेक्ट निकाल रहे हैं तो Yes. तब तक किसी सब्जेक्ट का तो थर्ड टाइम हो सकता है या किसी सब्जेक्ट का सेकंड हो सकता है, तो वो मैनेज कैसे करे ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब इनलिस्ट करे कैसे, ये थोड़ा टिप अगर आप दे सकते। नहीं, आपको अलग से मैनेज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने एनाटॉमी कंप्लीट कर दिया है, राइट, एंड आप अब फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हो। फिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले एनाटॉमी को जस्ट रिवाइज करना है, और अगेन आपने इतनी बार एनाटॉमी रिवाइज कर दिया है, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा। आई थिंक 20% ही मैक्सिमम आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी एनाटॉमी के टाइम ही 2 से 3 बार आपने रिवीजन कर लिया है। अब जब आप बायोकेमिस्ट्री शुरू कर रहे हो तो एनाटॉमी का अब 5% ही रिवीजन बचा होगा, बिकॉज इतनी टाइम आपने एनाटॉमी तो ऑलरेडी रीड कर लिया है, राइट। सो ऐसे करके जब आप फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स तक पहुंचोगे तो आपने जनरल एनाटॉमी ऑलमोस्ट 20 टाइम्स रिवीजन कर लिया है, तो उसमें अब टाइम नहीं लगेगा, राइट। टाइम उसमें ही लगेगा जो अभी रिसेंटली आपने पढ़ा है। तो जैसे मैं रिवीजन जब करती हूँ तो व्हाट आई डू, लाइक इनिशियली जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी तो लेक्चर्स करते थे हम, ठीक है, देन क्वेश्चन सॉल्व किया, देन एक्सप्लेनेशन देखा। बट राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग कि अभी आई जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, ठीक है, yes. मतलब शुरू से लेके अंत तक ईच एंड एवरी चैप्टर, ठीक है। वो होने के बाद में आई सी एक्सप्लेनेशन, अगर मैं कुछ भूल गई तो आई डू रिवाइज। तो इसमें क्या होता है कि जो नोट्स थे ना वो रह जाते हैं, तो एक वो दिमाग में चलता है कि अरे नोट्स तो रिवाइज किया ही नहीं, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एवरी टाइम रिवीजन सिर्फ क्वेश्चन से करे या क्वेश्चन नोट्स दोनों, या नोट्स छोड़ दें ऐसा? आपने जैसे नोट्स बनाए हैं, ठीक है, आप जब ड्यूरिंग द लेक्चर आपने नोट्स बनाए हैं, सो आपका एक जनरली मैं ये करता था कि मेरे नोट्स को भी मैं सिनॉप्सिस में ऐड कर देता था। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट टाइम जब मैंने सिनॉप्सिस पढ़ा है, राइट, तो मैं उसको जस्ट कंपेयर कर लेता हूं अपने नोट्स से, ठीक है। नोट्स में से अगर कुछ मिसिंग, सिनॉप्सिस में अगर कुछ मिसिंग है जो नोट्स में है, तो मैं एट दैट टाइम ओनली आई जस्ट ऐड दिस टू सिनॉप्सिस। सो मैंने डेंटल पल्स को ही अपना नोटबुक बना लिया है। ओके, गॉट इट, थैंक यू सो मच। सो मल्टीपल सोर्सेज रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस में से करना है, तो एक ही सोर्स कर देना है। हाँ, यही मेरा क्वेश्चन था कि क्योंकि एवरी टाइम आई जस्ट गो विद द क्वेश्चंस इन द पल्स, सिनॉप्सिस, एवरीथिंग, बट वो बैक ऑफ द माइंड होता है कि अरे कॉपी भी तो है, नोट्स भी तो है, वो कभी कैसे करे। तो एंड ऑनेस्टली जो सिनॉप्सिस में है, नोट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ी कुछ ही चीजें होती है जो हमको थोड़ी अपग्रेड करनी होती है। एग्जैक्टली, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके। Sir, there is a question. Vibhu is asking which coaching you chose. Okay, I had chosen Aspire MDS because मुझे सिर्फ गाइडेंस चाहिए था। मैंने BDS में अपने ठीक से कंसेप्ट को तो मेरे ठीक थे, लेकिन मुझे सिर्फ गाइडेंस चाहिए था, बिकॉज एनवायरमेंट चाहिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, राइट। थोड़ा गाइडेंस रहता है बिकॉज नीट का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट रहता है यूनिवर्सिटी एग्जाम से। सो जस्ट गाइडेंस के लिए मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। मुझे कोई थियरी नहीं चाहिए था, मुझे कोई कंटेंट की जरूरत नहीं थी। सो प्रिपरेशन के लिए मैंने एस्पायर MDS, बिकॉज इट वाज इकोनॉमिकल फॉर मी ऑल्सो, सो इसलिए मैंने वो ज्वाइन किया था। बट अब इफ आपका अगर थोड़ा बेस क्लियर नहीं है,
आपका अगर कंटेंट थोड़ा अच्छा नहीं है तो फिर आपको डिटेल में आई थिंक जो नोट्स मिलते हैं वो डेम्स से मिलते हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट लाइक सीडीज से आपको वहां पे लेक्चर अच्छे से मिलते हैं। Any other questions? ठीक है, अगर बीच में क्वेश्चन होते हैं तो जस्ट आप लास्ट में हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक Yes, है? sir. ओके। सो नेक्स्ट, अब हमारा एग्जाम का डे आ गया है, ठीक है? जस्ट अ मिनट। ओके, सो एग्जाम डे पे हमें क्या करना है, जस्ट एग्जाम के बिफोर क्या करना है और एग्जाम के डे पे क्या करना है। सपोज यू आर अ वॉरियर और आपने प्रिपरेशन किया है, ये आपका स्वॉर्ड है जो आपने प्रिपेयर किया है, लेकिन आप उससे बेस्ट फाइट नहीं कर सकते जब तक आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है, राइट? सो ये बॉडी से तो आप फाइट करने से रहे। सो उसके लिए अपने बॉडी को बेस्ट कंडीशन में प्रिपेयर करना है ताकि आपने जो स्वॉर्ड शार्प किया है उससे आप फाइट कर सको। सो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्लीप। आप एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से स्लीप लेना है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। स्लीप डिप्रीवेशन से आपकी 50% तक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कम हो सकती है, और 7 to 8 आवर्स अगर स्लीप अच्छे से ली है तो 30% तक आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। सो यहाँ पे हम कंपटीशन की बात ही नहीं कर रहे, आपका अपना मैक्सिमम आउटपुट की हम जब बात कर रहे हैं तो स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सेकंड इज डाइट। जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ब्रेन को कॉन्स्टेंटली एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और वो लॉन्ग रन के लिए एनर्जी चाहिएगी, राइट? सो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उस टाइम पे लेना चाहिए। सुबह जब आप घर से निकल रहे हैं तब ब्रेड या भाखरी, चपाती, कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेके जाना है। इवन एग्जाम से पहले जस्ट पहले आप बनाना कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपका मेंटल अलर्टनेस बना रहता है, आपको कॉन्स्टेंटली एनर्जी मिलती रहती है। ये दो चीज आपको चाहिए होगी एग्जाम के लिए, बिकॉज यहाँ पे हमें फाइट नहीं करना है। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिर्फ फाइट एंड फ्लाइट के लिए नहीं है, हमारा यहाँ पे बैठ के हमें टास्क को परफॉर्म करना है। सो उसके लिए हमारे ब्रेन को एनर्जी चाहिए होगी, और वो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। एंड थर्ड इज एक्सरसाइज। ये प्रूवन हो चुका है कि एग्जाम से पहले अगर आपने जस्ट 15 मिनट्स भी ब्रिस्क वॉकिंग कर दी, मैंने अपने एग्जाम में 10 सेकंड के लिए सिर्फ जंपिंग कर दिया था, 10 सेकंड के लिए सिटअप्स कर दिए थे, और जॉगिंग 1 मिनट के लिए जॉगिंग, दैट्स इट। 2 मिनट की एक्सरसाइज इनफ है आपके बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए। आप अलर्ट हो जाते हैं बिकॉज आपने अभी जस्ट मूवमेंट की है, आपके हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो अलर्टनेस बढ़ जाती है, और तुरंत ही इंस्टेंटली आपका फोकस बढ़ जाता है, और इससे आपका, जैसे हमने कहा कि स्ट्रेस भी कम हो जाता है। सो ये 3 चीजें ही आपको करनी है बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए। फर्स्ट, स्लीप हो गया, डाइट अच्छे से हो गया, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया एग्जाम से पहले, बहुत ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा ही एक्सरसाइज कर दिया, इनफ है, आपकी बॉडी रेडी है अब एग्जाम देने के लिए। सो अब हम वॉर में एंटर कर रहे हैं, ठीक है? अब हमने एग्जाम हॉल में एंटर कर दिया है। अब हमें कैसे एग्जाम को अप्रोच करना है, कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है? सो हमें एग्जाम को 3 फेज में कंप्लीट करना है। फर्स्ट फेज में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 1 लाइनर है, जिसको सॉल्व करने में 10 सेकंड से कम समय लगेगा। अगेन, ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें सॉल्व करने में जस्ट 10 सेकंड से लगते हैं, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगा। सो मैंने पहला क्वेश्चन देखा, लॉन्ग है, स्किप। दूसरा, लॉन्ग है, स्किप। मैंने 10 क्वेश्चन तक देखा, कोई भी मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, मैं 11 तक जाऊंगा। सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो मुझे आता है, 1 लाइनर है, और जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं। तुरंत मैंने वो टिक कर दिया, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ गया, ठीक है? इसका फायदा ये रहता है कि आपको जो क्वेश्चन आता है वो छूटेगा नहीं एग्जाम में। कई बार हमारा ये हो जाता है कि हमने लेंथी क्वेश्चन करने में हमारा टाइम इतना वेस्ट हो गया कि जो हमें आते थे क्वेश्चन वो रह गए, ठीक है? तो सबसे पहले हमें यह कंफर्म करना है कि हमें जो आता है वो एटलीस्ट ना छूटे, और ये इजी क्वेश्चन सबके सही होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन सही होने वाले हैं। अगर आपने लास्ट में हड़बड़ी में ये क्वेश्चन गलत कर दिए
तो फिर आप टोटली एग्जाम की कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को सोल्व कर लिए, और ऐसे क्वेश्चंस 30 to 40% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इजी होंगे, जिसके बारे में आपको आइडिया होगा। सो फर्स्ट 30 मिनट्स में ये सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए, ठीक है। 30% कंटेंट में आप कॉन्फिडेंट है कि आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। अब फेज 2 की बारी आती है। फेज 2 में वो क्वेश्चन है जो थोड़े लेंदी है, जिसको आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में। ऑफ कोर्स आप सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन इजी रहेंगे लेकिन लेंदी रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि 64-year-old gentleman is brought to severe central chest pain radiating to left arm. Now left arm में ये पेन रेडिएट हो रहा है, तुरंत ही मुझे आइडिया आ जाएगा कि ये किस चीज के बारे में है, राइट। प्रोफ्यूजली स्वेटिंग, व्हाट इज ही सफरिंग फ्रॉम? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सीधा मेरा आंसर हो गया। लेकिन इसको ये लेंदी क्वेश्चन है, इसको रीड करने में मुझे टाइम लगेगा, और ये मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता इनिशियली, बिकॉज इनिशियली मुझे सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो दूसरे फेज में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो इजी है लेकिन लेंदी है, ठीक है। और इसमें भी जो रोट मेमोरी वाले क्वेश्चन है, मैं हो सकता है उसको अवॉइड कर दूं। सबसे पहले मैं उन पे फोकस करूंगा जिसमें हमें रीजनिंग चाहिए, थोड़ा सॉल्विंग करने में टाइम चाहिए, उसको मैं पहले सॉल्व कर दूंगा। लास्ट में फेज 3 आएगा, जिसमें मैंने अब सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, लेंथी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे। अब वो क्वेश्चन है जो मुझे आइदर आते ही नहीं है, कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस है मेरे लिए, या फिर जिसमें मुझे 50-50% मुझे डाउट है। तो मैं फोकस करूंगा 50-50 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे मुझे कुछ दोनों में से एक में कंफ्यूजन है। अब ऐसे क्वेश्चंस को क्या सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस, आई थिंक करना चाहिए, बिकॉज ये आपके प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस को जनरली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स है, आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग, अगर क्वेश्चंस में ऐसा है, इसका मतलब ही है कि इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, बिकॉज लिखा है मोस्ट कॉमनली। सो ये क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेंजोडाइजिपिन कंपैरेटिवली सेफ फॉर प्रेगनेंसी। तो ये सेफ है, इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना होगा। सबसे ज्यादा दिया जाने वाला अगर ये है तो अल्प्राजोलम, ज़ोल्पिडेम, लोराज़ेपाम और नन ऑफ द अबाउ। अगेन, नन ऑफ द अबाउ जनरली क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है, बिकॉज कोई भी आपको क्वेश्चन पूछ के नन ऑफ द अबाउ तो आंसर एक्सपेक्ट नहीं करेगा, राइट। सो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मुझे अगर गैस ही करना है तो मैंने दो टाइप के दो नाम सुने हैं, अल्प्राजोलम, लोराज़ेपाम, जो दिया जाता है। लोराज़ेपाम के बारे में मैं ज्यादा श्योर हूं, तो मैं लोराज़ेपाम को टिक कर दूंगा, राइट। इस तरह से हम गैस वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये तभी करना है जब हम दो में से किसी एक के बारे में श्योर नहीं है तब। सेकंड, हम किस तरह से गैस कर सकते हैं? अगर कोई क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव आंसर है तो जनरली वो आंसर राइट होता है। 50 to 60% केसेस में जब ऑल ऑफ द अबव आंसर है तो वो राइट आंसर होता है। एंड थर्ड इज लॉन्ग आंसर। अगर कोई आंसर इतना लंबा है तो जनरली वो राइट आंसर होगा, ऑलवेज नहीं होगा, बट कोई एग्जामिनर इतना लंबा आंसर क्यों लिखेगा जब वो आंसर रॉन्ग है? तो ये जस्ट ट्रिक है, ये आपके लिए वर्क कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन जनरली ये देखा गया है, जो मैंने क्वेश्चन जितने सॉल्व किए हैं उसमें लॉन्ग आंसर जो होता है वो जनरली राइट आंसर होता है। अब इसमें से मुझे गेस वर्क करना है, राइट। सो ये अप्रोच रहता है एग्जाम को सॉल्व करने का। सो आपने फेज 1 कर दिया, जिसमें आपने सबसे इजी क्वेश्चंस कर दिए, 30% 40% आपने पेपर सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब ये सारे जब क्वेश्चंस हो गए तो आपको और ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। रैंडमली कोई गैसिंग मत करिए, क्योंकि नेगेटिव आंसर आपका रिजल्ट टोटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो आपके मार्क्स को नेगेटिव में ले जा सकते हैं, ठीक है। हमारा टास्क ये रहता है कि कम से कम सिली मिस्टेक्स हो, कम से कम रॉन्ग आंसर हो। हमें बहुत ही अच्छा नहीं अपने आप को परफॉर्म करना है, जस्ट ये हमें दिमाग में रखना है कि मिनिमम हमारे रॉन्ग आंसर होने चाहिए, हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। सो जैसे मैंने कहा कि हमने फर्स्ट फेज में ये कंप्लीट कर दिए हैं इजी क्वेश्चन।
फेज 1 कंप्लीट होने के बाद मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा, थोड़ा सिप ऑफ वाटर लूंगा, बिकॉज जब मैं ब्रेक लेता हूं मेरा ब्रेन अगेन एनर्जाइज होता है, सिप ऑफ वाटर से मुझे अगेन हाइड्रेशन मिलता है। 2 to 3 मिनट्स मैंने ब्रेक ले लिया, आंखें बंद करके मैंने थोड़ी देर बैठा। इसमें आपके जो कर लिए है वो क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करना है, सिर्फ रिलैक्स करना है। फिर सेकंड फेज शुरू करना है, अगेन सेकंड फेज फिनिश होने के बाद अगेन थोड़ा ब्रेक लेना है, अगेन थोड़ा पानी पीना है और फिर थर्ड फेज में जाना है। तो इस तरह से अगर स्टेप बाय स्टेप आप एग्जाम देते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है आपके नेगेटिव मार्क्स कम होने के और रिजल्ट इंप्रूव होने के। बिकॉज देखिए, आपको आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या आता है, वो एग्जाम में आप क्या परफॉर्म करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए यही स्टेप्स है। सो दिस वाज इट। आई आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन यही याद रखना है कि एग्जाम में जो बेस्ट होगा वही सबसे बेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा, वही परफॉर्म सबसे अच्छा करेगा जो एग्जाम के प्रेशर को हैंडल कर सकता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई डाउट है तो अभी अगेन पूछ सकते हैं। I guess Dr. Sujay is having doubt. Sir, Dia is asking which book have PYQs of NEET MDS? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने अभी जैसे बताया वाधवान बुक है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के लिए वाधवान, नीरज वाधवान की बुक है, जिसमें एग्जैक्ट वो पैटर्न में नहीं होता है लेकिन जस्ट सैंपल वही होता है क्वेश्चन पेपर का, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप नीरज वाधवान सोल्व करते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो नीरज वाधवान से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हैं। और नीरज वाधवान में केस ये है कि उसके एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल्ड होते हैं, बहुत लेंथी एक्सप्लेनेशन हो सकता है, हो सकता है आपके पास इतना टाइम ना हो कि एक्सप्लेनेशन अच्छे से उसके पढ़ पाए। सो सिर्फ आप क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन ही सोल्व कर दीजिए, बिकॉज डायरेक्टली सेम टू सेम पिकअप होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन किया है, आपको आंसर आता है तो सीधा वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगेन आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें। Any other questions? So Vibhu is asking how to prepare an internship. ओके, सो इंटर्नशिप में टाइमिंग डिपेंड करता है आपके कॉलेज का। फॉर एग्जांपल मेरा कॉलेज 1:30 बजे तक था, 1.5, तो मैं एग्जाम मेरे पास टाइम रहता था। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में 5 o'clock तक रहता है, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप जब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको थोड़ा अलग हो जाना पड़ेगा अपने दोस्तों से, थोड़ा टाइमिंग आपका सेव करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम बहुत कम रहेगा। अगर 5 बजे तक आपका कॉलेज रहता है तो बहुत कम टाइम मिलेगा, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, तो कॉलेज के टाइम में ही जितना भी आपका क्लिनिकल वर्क होता है उसमें ही थोड़ा टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं, उनकी परमिशन लेके आप अलग से थोड़ा प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं अपने टीचर से परमिशन लेके अलग बैठ के प्रिपेयर कर लेता था, बिकॉज मुझे प्रिपरेशन में ज्यादा था। तो और अलाउ करते हैं, अगर आपने सारे पेशेंट अगर अच्छे से कर लिए हैं, अपने प्रॉपरली फोकस किया है, और अगर टीचर्स को लगता है तो वो आपको हेल्प करते हैं, वो अलाउ करते हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए। Sir, Dr. Sujay is asking to start new with the preparation, should we go for PYQs? स्टार्ट करने से यस, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, बट उसमें आइडिया आपको नहीं आएगा और आप थोड़ा एंजाइटी हो जाएगा कि मुझे इसमें से कुछ नहीं आता है। राइट, जब हम टोटली न्यू क्वेश्चन करने लगते हैं, आपने 10 क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन किए, और अगर बहुत कम आते हैं तो डायरेक्ट आप डीमोटिवेट हो जाओगे, बिकॉज आपका कंटेंट अभी स्ट्रांग नहीं है।
सो आई वुड सजेस्ट पहले थोड़ा सा कंटेंट आपका स्ट्रॉन्ग कर ले। जैसे कहा, हमने प्लानिंग किया कि पहले वीक में हम 3 सब्जेक्ट्स को जितना हो सके उतना कवर करेंगे। तो उसका थियरी जब आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया आता है, आप कोरिलेट ज्यादा अच्छे से कर पाते हो। कोरिलेट करोगे तो आपके क्वेश्चंस याद अच्छे से रहेंगे, आपको आंसर अच्छे से याद रहेंगे। डायरेक्ट आप क्वेश्चन देख के आंसर याद नहीं रहते जनरली, कोरिलेट अगर नहीं करते हो तो। सर, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा आते हैं ऐसे आपके एनालिसिस से? मेरे हिसाब से इमेज क्वेश्चन में जनरली पैथो से होते हैं, पैथोलॉजी वो ज्यादा पूछते हैं। ऑर्थो में से ज्यादा पूछते हैं, ऑर्थो के जो डिफरेंट टाइप के जो होते हैं, यस, अप्लायंस में वो ज्यादा पूछते हैं। कभी कभार फिजियो में से पूछते हैं, मेनली जो ऑप्टिक नाव का जो ट्रैक है उसके बेस पे ज्यादा वो लोग क्वेश्चन करते हैं। और ओरल सर्जरी में अगर इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो इंस्ट्रूमेंट पे ज्यादा वो फोकस करते हैं। तो मुझे लगता है ये इतने पैथोलॉजी और ओरल सर्जरी फर्स्ट ईयर में से जनरली, जनरल एनाटॉमी में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन फिजियो में से मुझे ज्यादा लगता है क्वेश्चन आने के। पैथो से आपका मतलब जनरल पैथोलॉजी ना, ओरल पैथोलॉजी नहीं? हाँ, जनरल पैथोलॉजी से ज्यादा आता है। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोलूं, मुझे ओपैथ के डायग्राम जो टेक्स्ट बुक में होता है ना, वो कुछ नहीं समझते और सब मुझे सेम ही लगते हैं। आप शेफर करते हैं मतलब? हाँ, शेफर के क्वेश्चन नहीं होते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं और इतना नहीं डिटेल में वो पूछते हैं। जनरली फ्रैंकली सेइंग, आपको जनरली अगर पूछा जाता है तो हाइलिंग कार्टिलेज पूछते हैं अगर पैथो में बात करें, बिकॉज मैंने इतनी बार वो पैटर्न देखा हुआ है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि जनरली हाइलिंग कार्टिलेज उन्होंने पूछ लिया है, ठीक है, या फिर बोन का कोई पूछ लिया, ठीक है, बोन में ड्रॉ करके ओस्टियोसाइट या ओस्टियोब्लास्ट ऐसा कुछ करके पूछ लेते हैं। बहुत डिटेल में ओरल पैथोलॉजी के डिटेल में जाके जनरली वो नहीं पूछते हैं, अगर इन केस वो एग्जाम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लेना है तो। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे जनरल मेडिसिन और फिजियोलॉजी मतलब इंटर रिलेटेड है, तो जैसे क्या बहुत केस बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं या स्ट्रेट वे क्वेश्चंस रहते हैं? जनरल मेडिसिन से ही मैंने, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा है इसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, राइट? जनरल मेडिसिन का ही वो क्वेश्चन होगा। अब उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं, पैथोलॉजी से भी कोरिलेट कर सकते हैं, फार्मेकोलॉजी से एंड इवन फिजियोलॉजी से भी कोरिलेट कर सकते हैं। जनरल मेडिसिन के ही क्वेश्चन मैंने जब तक देखे हैं लॉन्ग और लेंथी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि केस बेस्ड सिनेरियो जो होते हैं वो उसमें से ही पूछ सकते हैं जनरली। तो आप उसके लिए कोई स्पेशल सजेस्ट करेंगे अदर देन पल्स? नहीं, आपने अगर अच्छे से वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से पल्स पढ़ा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल ही जाती है। जैसे अगर पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट साइड, ये तुरंत ही आपको क्लिक हो जाता है। इसमें कुछ भी बड़ा हार्ड वो क्वेश्चन है नहीं, टफ क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपने वो क्वेश्चन उतना सेंटेंस देख के ही आपको आइडिया आ जाता है। ओके, थैंक यू। Any other questions? You can ask in the text box as well. I guess Japlin questions are over. Okay. Japlin, we can end the webinar. You are not audible, Japlin. Am I audible now? Okay, so if anybody has any last minute questions, they can ask, sir. Okay, I think that's it. So thank you so much, Dr. Okay, wait, Dr. Sujay Singh has raised their hand. You can ask your questions. Maybe he's typing. Okay.
Yes, Dr. Sujay, you can speak or type anything that you prefer. I guess he is not aware about his camera. Maybe it was by mistake. Okay. So I think we'll end the. Okay, wait. Shrishti is asking, sir, what are the ideal marks to secure government seat in Gujarat and all India for general category? So ऑल इंडिया फॉर जनरल कैटेगरी आपको लास्ट हमारा जब मैंने देखा है उसमें क्लिनिकल फील्ड में आपको 400 तक रैंक आना चाहिए, 350 to 400, मैक्सिमम 400 हो सकता है। और अगर नॉन क्लिनिकल में है तो 400 एंड अबव हो सकता है, बट मिनिमम 350 तो होने चाहिए, 350 to 400 रैंक। Sir, Dr. Sujay is asking, is dental pulse sufficient? यस, डेंटल पल्स अगर आपने ठीक से करा है, बिकॉज डेंटल पल्स में एक चीज मैंने नोटिस की है कि इमेज बेस्ड कुछ भी हमारे प्रिपरेशन इतना नहीं हो पाता है। लास्ट में आई थिंक इमेज बेस्ड क्वेश्चंस उन्होंने ऐड किए हैं, तो इमेज बेस्ड के लिए आपको हो सकता है थोड़ा थियरी देखना पड़े, अदरवाइज डेंटल पल्स मोर देन इनफ है अगर अच्छे से किया है तो। He's also asking, what about AFMC Pune NEET PG? मतलब क्या AFMC नीट पीजी के लिए? I guess rank. He is asking about rank. रिसेंट रैंक मुझे सॉरी आइडिया नहीं रहेगा, वो देखना पड़ेगा, बिकॉज नीट MDS के लिए पर्टिकुलरली मुझे ये आइडिया रहता है कि नीट का क्या रैंक रहता है। Sir, Dia is asking, in final year, what is the preparation strategy? फाइनल ईयर के लिए मेरा ये सजेशन है कि पहले सबसे ज्यादा फाइनल ईयर पे ही फोकस करो, क्योंकि 50% आपका कंटेंट फाइनल ईयर से ही आएगा, ठीक है। और अगर अच्छे से आप प्रिपेयर करते हो फाइनल ईयर को, तो आपका 50% ऑलरेडी सॉल्व हो गया है, इंटर्नशिप में उतना लोड कम होगा, ठीक है। जितना भी अच्छे से आप कंसेप्ट क्लियर कर पाओ, टीचर से जितने हो सके कंसेप्ट अच्छे से बना लो, क्योंकि इंटर्नशिप में आपके पास टाइम नहीं होगा। फाइनल ईयर अच्छे से प्रिपेयर कर दो 8 सब्जेक्ट को, ताकि इंटर्नशिप में सिर्फ आपको रिवाइज ही करना है, उसको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़े। Sir, Shrishti is asking, is solving book dentist necessary for general anatomy? आई डोंट थिंक अलग से मतलब डेंटल पल्स से ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है। जनरल एनाटॉमी भी आपने अगर क्वेश्चंस देखे हैं तो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द लाइन, मतलब कुछ भी नया क्वेश्चन पूछ लिया है जो हमारी बुक में नहीं है, ऐसा जनरली नहीं होता है। डेंटल पल्स में इनफ कवर हो जाता है। अलग से अब क्या रहता है कि आपने अभी सॉल्व करोगे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो डेंटिस्ट आप अलग से फिर आपको डेंटिस्ट पकड़ के बैठना पड़ेगा। दूसरा कोई सब्जेक्ट आपने दूसरी बुक्स में से किया है तो वो अलग से फिर वो पकड़ के बैठना पड़ेगा। लास्ट में यही रहता है कि एक जगह पे हमें चीजें चाहिए, अलग अलग बुक्स करी है तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज रह जाता है। So Dr. Sujay was asking for AFMC Pune rank and age. Sorry, Sujay, I don't know particularly AFMC Pune because वो रैंक एंड एज उसके लिए मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कि कौन सा रैंक चाहिए होता है और एज के लिमिट क्या है। I guess now questions are over. Yes. So we'll end the session here. Thank you so much, Dr. Nilesh sir, for your guidance. It was really beneficial for everyone here. And thank you everyone for joining. We'll end the session now. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.